A very wonderful good morning to all of you students. This is Meenu Chugh, your English teacher, and as you all know that this video is for class 6 and we are going to revise today's topic noun, and basically these topics are about to come here in your future UTs also. So what is noun? Let me tell you definition. Noun, name of any person, place, animal or thing is called noun. Name of any person, place, animal or thing is called noun. Or you may say all visible or invisible things are called noun. Means the things which you are able to see or which you are not able to see. Means the things what we are not able to see. We are not able to see anybody's feelings, anybody's fear. So such type of feelings are also noun. And secondly, if you want very easy definition of this topic, so all the naming words are called noun. All the naming words are called noun. Hope you got it. So students, as you all know that there are 5 types of nouns. The first one is proper noun. All the proper nouns have particular name, means name of things, name of people, name of animals, name of places. Whatever the thing is there, doesn't matter, but that should have a noun for defining a proper noun. Let's have an example. He is a naughty boy. I wrote a sentence that he is a naughty boy. His name is Ram. So what is the name of that boy? The name of that boy is Ram. So what is our proper noun in this sentence? Ram is our proper noun in this sentence. Got it, students? The second example I would like to take. It is my pet and its name is Kitty. Clear? It is my pet and its name is Kitty. So what is the name of the pet? Kitty. Kitty is a name. That's why Kitty is proper noun. Delhi is the city full of pollution. Clear? Delhi. What is the name of the place? So the name of the place is, students, Delhi. Delhi is the city full of pollutions. जगह का क्या नाम आ गया? Delhi. Pet का नाम आ गया? Kitty. मतलब लिविंग पर्सन का नाम आ गया? राम. मतलब कि उस बॉय का क्या नाम है? राम. So all these 3 words are called proper noun. Let's discuss about common noun. What is common noun बेटा? The things which are actually common. जो चीज़ें हमारे लिए कॉमन हैं, जो चीज़ें हमें किसी जाति का बोध कराती हैं, जो हमें किसी की जाति के बारे में बताती है. फॉर एग्जाम्पल बॉयज़ गर्ल्स. अब बॉयज़ और गर्ल्स को हम 2 डिफरेंट जाति में कन्वर्ट कर मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं. क्लियर? उन दोनों में डिफरेंस है. तो ऐसे ही कैट है, डॉग है, काऊ है, मतलब उनकी प्रजाति हो गई ना. तो जब प्रजाति का डेफिनेशन दिया जाता है ना, उसके बारे में बताया जाता है, तो दैट कम्स इन कॉमन नाउन. एंड सेकंड थिंग, द थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली कॉमन टू ऑल ऑफ अस. फॉर एग्जांपल दिस फैन, दिस टेबल, दिस लाइट, दिस लेक्चर स्टैंड, ईच एंड एवरीथिंग, इवन दिस मार्कर एंड दिस डस्टर इज ऑल्सो कॉमन नाउन बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन टू ऑल ऑफ अस. फॉर एग्जाम्पल, all girls are very naughty in this room. So girls, आपको गर्ल्स के बारे में बताया, गर्ल्स की जाति का बोध कराया जा रहा है, तो दैट इज कॉमन नाउन. सपोज आई से टर्न ऑफ द फैन. अब मैं कहती हूँ फैन को बंद कर दो. अब फैन की भी जाति होती है, मतलब बहुत सारी टाइप्स के फैन होते हैं, राइट? तो दैट फैन इज ऑल्सो कॉमन नाउन. एंड दैट कैट इज हॉट. तो
पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कैट ना, तो उस कैट की जाति का बोध कराता है, तो दैट इज कॉमन नाउन. गॉट इट? The third one is abstract noun. Abstract noun beta, the things which we can feel, the things which cannot see, which we cannot see, which are unseeable. बेटा ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख नहीं सकते बट वी कैन फील देम, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं. वेरी इजी एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू टेक द एयर. आई वुड लाइक टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ एयर. एयर है बेटा, आप हवा को देख नहीं सकते बट आप उसे महसूस कर सकते हैं. गॉड है, बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है. गॉड है, हम उन्हें देख नहीं सकते बट हमें महसूस होता है कि नहीं भगवान है. अब किसी की अच्छी आदतें हैं, गुड हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, किसी की अच्छी फीलिंग्स है, किसी की बुरी फीलिंग्स है, तो ऑल दीज थिंग्स वी कैन फील बट वी कैन नॉट सी. सपोज समवन इज करेजियस, सपोज आई सी शी इज वेरी करेजियस लेडी, राइट. करेजियस होता है बेटा साहसी, कि वो बहुत ज़्यादा साहसी लेडी है. क्लियर? तो करेजियस, शी इज़ करेजियस बाय हार्ट, इंटरनली शी इज़ करेजियस ना, बट करेज को हम आसपास उसके साथ कहीं बैठा नहीं देख सकते, तो दैट्स वाई करेजियस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. गॉट इट? सो लेट्स हैव 1 or 2 more examples. ही इज़ वेरी सेंसिबल. अब सेंसिबल, किसी का सेंसिटिव होना, किसी का सेंसिबल होना, दीज आर ऑल्सो फीलिंग्स, सो दैट्स वाई इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. शी इज वेरी हैप्पी टूडे. हैप्पी, डिलाइटफुल, सैड, वट एवर द फीलिंग्स वी हैव, दीज ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मतलब कि ऐसी चीज़ें विच वी आर नॉट एबल टू सी बट वी आर एबल टू फील, दोज ऑल आर कॉल्ड abstract nouns. Hope you got it beta. These are called भाववाचक संज्ञा also. The fourth one I would like to take material noun. मटेरियल नाउन में बेटा नाम से ही यू कैन रिकोगनाइज कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम मटेरियल्स. हम मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. वेदर दे आर लिक्विड और वेदर दे आर हार्ड डजंट मैटर. फॉर एग्जाम्पल, शी इज प्रिपेयरिंग टी, ठीक है. एक मटेरियल नाउन में बेटा देयर इज वन मोर थिंग कि जब आप किसी एक चीज़ को मोल्ड करके कुछ और बना सकें. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास शुगर है, आपके पास पानी है, आपके पास दूध है, आपके पास पत्ती है. अब इन सबको मोल्ड करके आप क्या बना देंगे? चाय बना देंगे. क्लियर है? तो जब हम किसी एक चीज़ को मोल्ड करके कोई दूसरी चीज़ बना देते हैं तो दैट ऑल्सो इज इंक्लूडेड इन मटेरियल नाउन. ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है बेटा और ये हार्ड फॉर्म में भी होता है. अब वन मोर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू टेक. हर डायमंड रिंग इज वेरी प्रीशियस. हर डायमंड रिंग इज वेरी प्रीशियस. डायमंड, सिल्वर, वुड. अब वुड है, लकड़ी को तोड़कर आप घर बना सकते हैं. डायमंड है, उसको तोड़कर आप चेंज करके उसको मोल्ड करके आप रिंग बना सकते हैं, आप नेकलेस बना सकते हैं. मीन्स द थिंग्स विच यू कैन चेंज टू अनदर थिंग आर मटेरियल नाउन. होप यू गॉट इट स्टूडेंट्स. वाटर, शुगर, दीज ऑल आर ऑल्सो मटेरियल नाउन्स. वाटर इज अ प्रीशियस, water is precious for all of us. क्लियर है? वाटर इज प्रीशियस. अब वाटर आपको ऑलरेडी आई टोल्ड यू ना कि वाटर, टी, any liquid form is called material noun and the things which are changeable to another thing are called material noun. The last one I would like to take collective noun. Collective noun is बेटा when there is collection of something. जब
कुछ कलेक्ट हो जाए, कुछ चीज़ों का कलेक्शन हो जाए, चाहे इधर दे आर पीपल और दे आर एनिमल्स और एनीथिंग एल्स, एनीथिंग कुड बी देयर। अब कलेक्टिव नाउन है, फॉर एग्जाम्पल आई से हर्ड ऑफ काउज, bunch of grapes, school of fish, school of fishes, okay, and bunch of keys, army of soldiers, क्लियर। हर्ड ऑफ काउज, गायों का झुंड, ठीक है। अब वो झुंड हो गया, हर्ड का मीनिंग होता है झुंड, ठीक है। जब वो झुंडी हो गया, इतनी सारी गायें इकट्ठी हो गई, इकट्ठी हुई तभी तो झुंड बना। जब वो इतनी सारी काउ इकट्ठी हो गई और वो कलेक्ट हो गई तो वो किस में आ गया, कलेक्टिव नाउन में। तो काउज नहीं होगा हमारा कलेक्टिव नाउन, हर्ड, बेसिकली हर्ड एंड हर्ड ऑफ काउज वुड बी इन द कलेक्टिव नाउन। बंच ऑफ ग्रेप्स, क्लियर, बंच ऑफ ग्रेप्स। अब अंगूरों का क्या है, गुच्छा है। चाबियों का क्या है, गुच्छा है। ऑब्वियस सी बात है, एक की होगी तो यू विल काउंट ना सिंगल की, टू कीज, लेकिन जब वो एक से ज़्यादा हो जाती हैं और वो ग्रुप में हो जाती है तो दैट वुड बी कलेक्टिव नाउन। स्कूल ऑफ फिश, फिश के लिए बेटा हम स्कूल स्पेसिफिक वर्ड है इसका यूज़ करते हैं, तो स्कूल ऑफ फिश कलेक्टिव नाउन, बंच ऑफ कीज कलेक्टिव नाउन, आर्मी ऑफ सोल्जर्स collective noun. Hope you got it, students. So after that we will revise one paragraph. So students, let's have a revision of one paragraph on the topic of noun. So here I have written one paragraph for you. Underline the nouns and tell its parts. आपने noun को underline करना है और उसके parts मतलब जो किस टाइप का है, you may say tell its types. क्लियर है? द पार्क हैज़ अ बिग पॉन्ड। अब मैंने आपको क्या बताया था बेटा, द थिंग्स विच आर कॉमन, जो ऐसी चीज़ें जो जैसे अब पार्क है, अब पार्क पूरी दुनिया में एक तो है नहीं, अब मेरे घर के पास भी पार्क है, अब किसी कोई टीचर है उनके घर के पास भी पार्क है, अब प्रिंसिपल हैं उनके घर के पास भी पार्क है, मतलब पार्क की क्या हो गई, बहुत सारी टाइप्स हो गई, और पॉन्ड की क्या हो गई, बहुत सारी टाइप्स हो गई। तो ये हमारे क्या हो गए बेटा, नाउन। बट कौन से नाउन, कॉमन नाउन। एक चीज़ है जैसे पार्क है, पार्क कॉमन नाउन है, तो मैम हैज़ क्या है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। बिग क्या है, बिग हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि उस पॉन्ड की क्वालिटी बताई जा रही है। देयर आर मैनी फिशेज इन द पॉन्ड, अब इसमें से कौन सा नाउन है, देयर तो नहीं है ना, हेयर देयर ये तो नाउन ही नहीं होते, आर तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, राइट। मैनी भी मुझे कहीं नाउन नहीं नजर आता है ना। फिशेज कॉमन नाउन हो सकती हैं, राइट। तो फिशेज हमारी क्या है, कॉमन नाउन। अगेन हमारे पास रिपीट हो गया। अब इन और दा को तो आप नाउन में वैसे भी काउंट नहीं कर सकते, तो पॉन्ड हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन। टोनी एंड सारा क्या हो गए बेटा, ये पता चलेगा सेंटेंस पढ़ने के बाद। टोनी एंड सारा वेंट टू द पॉन्ड विद देयर फादर एंड मदर। टोनी एंड सारा नेम हो गए बच्चों के, तो क्या हो गए हमारे प्रॉपर नाउन। वेंट टू द पॉन्ड, फिर पॉन्ड आ गया, फिर से ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। विद देयर फादर एंड मदर, और फादर और मदर क्या हो गए फिर से, कॉमन नाउन। गेटिंग, दे गेव ब्रेड, अब ब्रेड भी इजीली अवेलेबल हो जाती है हर जगह से, मेरे घर के पास से भी मिल जाएगी, आपके घर के पास से भी मिल जाएगी, आपके पड़ोसी के घर के पास से मिल जाएगी, आपके दोस्त के घर के, मतलब कॉमन हो गई ना, इजीली अवेलेबल है। द थिंग्स विच आर एक्चुअली कॉमन टू ऑल ऑफ अस। तो दिस ब्रेड इज ऑल्सो कॉमन नाउन टू द फिशेज। अब फिश एक बार कॉमन नाउन है तो फिर वो कॉमन नाउन ही रहेगा बेटा, ठीक है। दीज फिशेज अगेन फिश इज कॉमन नाउन, केम क्लोजर टू देम। अब क्लोजर टू देम में से कोई नाउन नहीं है, तो ऑब्वियसली कितने नाउन काउंट किए हमने, पार्क, पॉन्ड, फिशेज, फिर से पॉन्ड, टॉनी, सारा, पॉन्ड, फादर, मदर, ब्रेड, फिशेज, etc. These all are nouns. So students, hope you got each and everything very clearly, but I must say, must complete your work daily and send to your teachers, send to the particular subject teachers. Hope you all are fine students. Thank you so much. Keep enjoying. Have a nice day. See you soon. Bye bye.